Okay, so let's begin with today's session. फॉर्मूला आपके सामने है. कल हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए. आगे बढ़ते हैं. आज एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था. इसके ऊपर मैंने नोट्स के ऊपर भी भेज दिया है. चलो हम इसको सॉल्व करना है. If y is equal to this sin x by 2 plus cos of x by 2 bracket square, find dy by dx at x is equal to pi by 6 रेडियन मतलब 30 डिग्री. ठीक है. फाइंड dy by dx. dy by dx मतलब उसका डेरिवेटिव होता है. कल हमने ये देखा. करेक्ट. मुझे y को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. y इज अ ब्रैकेट स्क्वायर हियर. तो ये y क्या बन जाएगा? इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? स्क्वायर है ना इसका. तो a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर यूज करेंगे तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2 प्लस 2 sin x by 2 into cos of x by 2. Now what is sin square of x by 2? 1 plus cos square of, and this is half angle formula. तो कुल मिलाकर क्या आएगा बताइए मुझे. y is equal to क्या आएगा? This is 1. 2 sin x by 2 cos x by 2 is actually sin x. क्योंकि बराबर है ना? Because you know this formula. 2 sin theta by 2 cos theta by 2 sin theta. Is that clear? Now this is y is equal to 1 plus sin x. Y is equal to 1 plus sin x. This is looking like y is equal to u plus v. इस तरह से दिख रहा है. करेक्ट ना? This is looking like y is equal to u plus v. So what is the formula for y is equal to u plus v? इसके लिए क्या फॉर्मूला है बताइए प्लीज. If y is equal to u plus v तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx. Is that okay? मतलब जब इसका डेरिवेटिव मैं लिखूंगा यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? Therefore dy by dx is equal to d by dx of 1. ये 1 है ना u और v is sin x. So d by dx of 1. Please keep the formula page before you. Plus d by dx of sin x. So what is the derivative of a constant? Last formula. 12th वाला. 13th. Derivative of constant k. And derivative of sin x. Cos x. Formula number 4. Cos x. So what will be the answer here? dy by dx is equal to cos x. Is this clear to you all? Any doubts about that? The next question. हाँ, उन्होंने पूछा है at x is equal to pi by 6, that is 30 degree. Therefore last में हम क्या लिखेंगे? Therefore dy by dx at x is equal to pi by 6 is given by cos of pi by 6 and cos of 30 degree is equal to root 3 by 2. Is this clear to you all? समझ में आ गया सबको ये? चलिए आगे बढ़ते हैं. y is equal to 2x raised to 9 वगैरह वगैरह वगैरह. अब इसको मैं बोलूँगा y is equal to u minus v plus w minus what is that? y z क्या बोल सकते? y is equal to u minus v plus w minus p. इस तरह से बन गया ये. तो डेरिवेटिव्स कैसे लिए जाएंगे उसको बताइए मुझे. Therefore I'll say here dy by dx is equal to इसका डेरिवेटिव that is dy by dx of हर एक का लिखूंगा मैं 2 by 3 x raised to 9 minus d by dx of 5 by 7 x raised to 7 plus d by dx of 6x cube minus d by dx of x. Is that clear? अब एक रूल हमने देखा था कि भाई कोई कांस्टेंट अगर होता है, yesterday we have seen this rule. आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर मैंने आपको ये भी रूल बताया था रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर. ये तो हमने डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले देखे. फॉर्मूले के बाद हमने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखे थे. इसमें हमने देखा था एडिशन रूल. व्हाट इज एन एडिशन रूल? एडिशन रूल ये बोलता है कि u प्लस v है तो पहले इसका डेरिवेटिव ले लो फिर इसका ले लो, इस तरीके से. सही है.
isn't it? Subtraction rule, u minus v, तो ऐसा लेना है. But there is one rule for the constant. Constant के लिए क्या रूल हमने देखा था कि भाई अगर ये constant है तो I can take this constant out और k into du by dx ऐसा होता है. And this is the rule of product. ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी constant का रूल फिलहाल हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे. Is that understood? So let me apply this constant का rule in this problem when we are solving here. तो यहाँ पर ये चीजें constant आपको दिखाई दे रही है. This is a constant. Can I take this constant out? ये भी constant है. Can I take that out? और ये भी constant है. Can I take that out? Hello? So you want me to write down this thing like 2 by 3 into d by dx of x raised to 9 क्या आएगा? आगे बताइए. minus 5 by 7 into d by dx of x raised to 7 plus 6 d by dx of x cube and d by dx of d by dx of x 1c, formula number 1c, 1, d by dx of x is 1. Is this okay? Is that clear? Is that okay? All right. Now यहाँ पर मैं formula number 1 अप्लाई करूँगा तो क्या आएगा वो बताइए. This is x raised to 9, x raised to 7, x cube. Which formula I'll apply here? I'll apply the formula d by dx of x raised to n is equal to n x raised to n minus 1. This is formula number 1. Apply कीजिएगा हर एक के लिए. क्या बन जाएगा? This 2 by 3 will be as it is. x raised to 9 is 9 x raised to 8. सही है. आगे का आप बताना शुरू कीजिएगा. 5 by 7 into 7 x raised to 6 plus 6 into ये आएगा 3 x raised to 3 minus 1, that is 2 minus 1. Is that clear? Is that okay? Hello? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 3 3s are 7 7 cancel. So what do you get there? All in all 6 x raised to 8 minus 5 x raised to 6 plus 18 x square minus 1. Well, this is dy by dx. सही है. But this is derivative. But they want this derivative at x is equal to 1. So final step में मुझे x के equal to 1 substitute करना पड़ेगा. So I'll say here dy by dx at x is equal to 1 is equal to क्या बनेगा बताइए. This will become 6 into 6 minus 5 plus 18 minus 1, क्योंकि x raised to 8, x raised to 6, x square सब 1 ही आने वाला है. तो कुल मिलाकर आंसर क्या हो जाएगा? 18. Any doubts about that? समझ में आ गया सबको ये? ओके. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गो फॉर. ये रहा और ये फॉर्मूला आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा, आपको चाहिए तो, लेकिन फॉर्मूला है आपके पास. इफ f of x is equal to cosec x plus cot x, find f dash of pi by 4. f dash of pi by 4 का मतलब होता है dy by dx at x is equal to pi by 4, मतलब 45 डिग्री. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? हेलो, समझ में आ गया? ध्यान दो यहाँ पर अभी, ठीक है. अब मुझे इसका y is equal to actually u plus v, तो u plus v अगर अप्लाई करेंगे रूल तो क्या मिल जाएगा बताइए मुझे. अगर मैं u plus v अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? Yes, this will give me dy by dx, du by dx plus dv by dx. तो इसको क्या हो जाएगा ये? This will become d by dx of cosec x plus d by dx of cot of x. फॉर्मूला पेज रेफर करिएगा. फॉर्मूला नंबर 7 and 9. 9th वाला पहले, minus cosec x cot x and d by dx of cosec x cot x is minus cosec square x. 7th वाला फॉर्मूला. तो दिस इज माइनस ना, तो ये माइनस बन जाएगा. दिस इज माइनस cosec square x. Is this clear to all? But they want this at pi by 4, मतलब 45 डिग्री. So final step में मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? I'll write it as therefore dy by dx at x is equal to pi by 4 is given by, बोलिए क्या आएगा ये? This will become minus cosec 45 cot of pi by 4 minus cosec square of pi by 4.
Now cosec of 45 is root 2 and cot of 45 is 1. ये आएगा माइनस रूट टू इंटू वन माइनस रूट टू का स्क्वायर. सो द आंसर विल बी माइनस टू प्लस रूट टू. इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है. ये है वो सारे क्वेश्चंस जो हम अब सॉल्व करेंगे u इंटू वी के लिए. ठीक है. इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं ये वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. तो दिस इज द सेकंड एक्सरसाइज. पहला एक्सरसाइज जो मैंने कल दिया था आप लोगों को, इट वाज दिस. ये वाला फर्स्ट एक्सरसाइज है जो आपके नोट्स में पहुंच गया है आपको. तो ये मैंने पूरे यहाँ तक सॉल्व कर लिए हैं. 10th वाला जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से मैंने 9th तक सॉल्व किया. 10th वाला नहीं किया क्या? Didn't I solve the 10th one? स्टार्टिंग के अच्छा, इसमें से मैं कुछ सिलेक्टिव ही सॉल्व कर रहा हूँ ना, इस वजह से. चलो कोई नहीं. क्वेश्चन नंबर 10th वाला जो है वो मैं सॉल्व करना चाहूंगा. इफ y इज इक्वल टू दिस आई वुड लाइक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन 10th वाला. ठीक है. लेट्स बिगिन. यहाँ पे 7 9. so I'll solve the 10th वाला question. Very interesting question. But before I go for this question, I will have to explain you the concept of factorial notation. You know what is factorial notation? Factorial notation. कुछ नहीं देखना है तुमको, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ टेक्स्ट बुक आपको फॉर्मूले के लिए देखना है. अब फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो. फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? 1 into 2 into 3 into 4 into 5 is written as 5 factorial. समझ में आ गया? If I'll write 3 factorial तो क्या होगा? 3 into 2 into 1. समझ में आ गया? That is called as factorial notation. It is there only for the positive numbers. ठीक है. मैथ्स 2 का एक चैप्टर है जिसका नाम है परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस, जिसमें हम ये आगे ज्यादा देखने वाले हैं. सो दिस नोटेशन इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल नोटेशन. ऐसा लिखते हैं उल्टा आई. 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल. बाय द वे 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. वी विल एक्सेप्ट दिस फॉर्मूला विदाउट प्रूफ. 0 फैक्टोरियल इज 1. ठीक है. वेल, नाउ आई विल टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच सेज y इज इक्वल टू, क्या बोलता है ये क्वेश्चन? y इज इक्वल टू 1 plus x upon 1 factorial, x square upon 2 factorial, x cube upon 3 factorial plus dot dot dot. Find dy by dx. ठीक है. 1 plus x upon 1 factorial plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus dot dot dot. Find dy by dx. समझ में आ गया? Is that clear? We have to find out this one. अगर y ये है, फैक्टोरियल इज अ कांस्टेंट एक्चुअली, तो व्हाट विल बी, इसको मैं लिख सकता हूँ कि भाई दिस इज लाइक y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w प्लस ये सब चलता चलेगा, है ना. तो u इज 1 हियर, v इज दिस इज w, करेक्ट. तो इसका डेरिवेटिव अगर मुझे लिखना पड़ेगा तो क्या बनेगा? dy by dx इज इक्वल टू, हर एक का डेरिवेटिव इंडिविजुअली या सेपरेटली लेना पड़ेगा मुझे. तो इट विल बिकम dy by dx ऑफ 1 प्लस dy by dx ऑफ, बोलिए, x square upon 1 factorial. करेक्ट. बाय द वे 1 फैक्टोरियल क्या होता है जी? 1. 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 into 2. आप उसको पहले 1 लिखो बाद में 2 या कुछ भी चलेगा. 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 into 2 into 3. समझ में आ गई बात? आगे क्या होगा बताइए? दिस इज dy by dx ऑफ x. एक मिनट, हाँ यहाँ पर x होना चाहिए ना. दिस इज x. x upon 1 फैक्टोरियल. दिस इज x square upon 2 फैक्टोरियल, है ना. फिर dy by dx ऑफ x cube upon 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट. सही है? करेक्ट है. आगे बताइए. और व्हाट नेक्स्ट? नाउ प्लीज रेफर फॉर्मूला नंबर 13. dy by dx
इज इक्वल टू, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट? 13 है ना वो, 13 है या 12? 13 और 12, अभी अभी जो बुक्स में हमने अपडेट किया 13 या 12 कुछ, 13. इज इट कांस्टेंट? इज वन कांस्टेंट? इज वन अ कांस्टेंट? देखिए यहां पर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0. कैन आई से सो? तो ये आंसर क्या आएगा बताइए यहाँ पे, देयरफॉर डी व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले तो ये आएगा 0. सही है. अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें से हर एक के लिए मैं यूज करूंगा कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू यू is k, I can take out. So this will become k times d by dx of u. Correct? This is a property. Formula में नहीं है, properties में है. And this I will apply everywhere. यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो इसमें k क्या है? This 1 upon 1 factorial is k. This is k. यहाँ पर 1 upon 2 factorial is k और यहाँ पर 1 upon 3 factorial is k, which I'll take out, which I'll take out, which I'll take out. एक्चुअली 1 फैक्टोरियल इज 1 ओनली, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा. समझ में आ गया बात? तो क्या आएगा ये बताइए. दिस इज प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, बट 1 फैक्टोरियल इज 1 एंड 1 का 1 ही आएगा यहाँ पे, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. समझे? प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 1 अपॉन 1 इंटू 2. इट्स नॉट 1.2, इट इज 1 इंटू 2 एंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. इज दिस ओके? इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज, यहाँ पर क्या आएगा बाहर, कांस्टेंट क्या आएगा बताइए, 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 है ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, एक्स क्यूब. सही है. और डॉट 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 का मतलब है सिलसिला चलता रहेगा. नाउ दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 0 इज गॉन, दिस इज 1 ओनली. व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स? 1c. फॉर्मूला 1c देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1. समझे? प्लस 1 अपॉन 2 आएगा यहाँ पर. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? और 1 इंटू 2 आएगा. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? फर्स्ट फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन. व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन? एन एक्स रेज टू एन माइनस 1. सही है. तो ये फॉर्मूला इधर अप्लाई कीजिएगा और यहाँ पर भी अप्लाई कीजिएगा. क्या मिलेगा बताइए? दिस इज 1 इंटू 2 और ये आएगा 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1, दैट इज एक्स. सही है. प्लस दिस इज 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3. सही है. एंड एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला इधर, एक्स का क्यूब 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1 2 एंड दिस विल गो ऑन एंड ऑन. यस और नो? समझ में आ गया? चलिए आगे क्या होगा बताइए मुझे. therefore this will give me therefore dy dx of dy by dx is equal to, this is 1 प्लस, देखो इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा है, एंड इज दिस x रेज टू 1 मतलब x एंड 1 का मतलब ही 1 फैक्टोरियल होता है. 1 मतलब 1 फैक्टोरियल, 2 मतलब 1 इंटू 2. अच्छा, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा and this is 1 into 2. So can I say this is x square upon 2 factorial. अगला वाला भी अगर आप सॉल्व करोगे तो वैसे ही आएगा, it will be x cube upon 3 factorial and this will go on and on. बट इसको मैंने शायद कहीं देखा है. In fact this is the problem. y ही है ना ये तो. Dot 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 मतलब how many points are there? Like how many terms are there? Infinitely many. समझे क्या? डॉट 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 मतलब इनफिनिट. उसमें से ये जो है 1 उसका डेरिवेटिव 0 आ गया, तो इनफिनिटली मेनी टर्म्स आर देयर, उसमें से एक टर्म गया तो कितना बचा? व्हाट इज इंफिनिटी माइनस 1? इंफिनिटी. समुद्र की पानी में से एक बूंद निकालो तो क्या बचेगा? समुद्र. समझ में आ गया? इंफिनिटी माइनस 1. तो यहां पर what I see is this is y again. So this is a unique problem जिसमें dy by dx is equal to y. Is this okay? Any doubts about that?
समझ में आ गया सबको ये? इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक दिस फर्दर नाउ। अब अगला वाला जो एक्सरसाइज है, दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल एंड द डिवीजन रूल, दो रूल्स यहाँ पर यूज करने हैं, प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल। कल के जो रूल्स है मैं आपको दोबारा याद दिला दूं। डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, ये रहेगा। This is d by dx of u into v. It is first function as it is derivative of the second plus second function as it is derivative of the first. This is called as product rule and this is called as quotient rule. Quotient rule में एक यहाँ पर और एक इसका 5a दिया है. This is 5 and this is 5a. कि भाई इसमें से न्यूमरेटर इज k and डिनोमिनेटर इज v, तो क्या होगा k upon v. तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे v du by dx minus u dv by dx upon v square. But u is k here, derivative of k that is a constant is 0. तो ये कैसे बन जाएगा? ये ऐसे बन जाएगा क्योंकि ये टर्म 0 आएगा. So this is minus k upon v square dv by dx. Is this okay? Are you feeling sleepy? नींद आ रही है? अगर नींद आ रही है तो खड़े रहो, don't worry. Oh. Is that okay? Minus k upon v square into dv by dx. Yeah. तो ये फॉर्मूला है u इंटू वी का, मैंने रेड कलर से लिखा है, करेक्ट? dy by dx is equal to u dv by dx plus v dv by dx, करेक्ट? सब्स्टिट्यूशन करना है, बताइए मुझे क्या होगा फिर? dy by dx is equal to what is u, first function as it is root x into d by dx of second function, मतलब v क्या है वो cot x plus second function as it is cot x into d by dx of root x. Is that okay? Therefore, what is dy by dx is equal to, this is root x into what is derivative of cot x? Formula number 7. Minus cosec square x. Minus cosec square x. मंडे के दिन नहीं, कल ये वाले फॉर्मूला आप लर्न करके आओगे. कल सैटरडे है ना, अच्छा दिन है. वेरी गुड. प्लस cot x d by dx of root x, formula 1a, 1 upon 2 root x, 1a 1 upon 2 root x. क्या आप लोगों में से सबने टेक्स्ट बुक में ये 1a 1b 1c सब लिखा है? एवरीबॉडी अपने अपने टेक्स्ट बुक में, एंड दैट्स द आंसर. इसको और आगे नहीं सिंप्लीफाई कर सकते. सो दिस इज इट. इज दैट क्लियर? समझे? आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अगला क्वेश्चन जो है ये कैसे करेंगे इसको. So let's see how to go for that. इसमें y is equal to 4x square minus 7x plus 5 into sec x. I'll treat this as u and this is v. And u into v का formula, first function as it is derivative of the second, the second function as it is derivative of the first. तो अप्लाई कीजिएगा, क्या मिलता है बताइए यहाँ पे. This will give me dy by dx is equal to first function as it is, मतलब this bracket 4x square minus 7x plus 5 into d by dx of v sec x plus second function as it is sec x into d by dx of u, what is that? 4x square minus 7x plus 5. सही है? Is this okay? समझ में आ गया सबको ये? This is clear? अब मुझे एक चीज बताइए कि इसका डेरिवेटिव मुझे मिलेगा फॉर्मूला नंबर 8 sec x tan x. हाँ, इसके लिए तो रेडीमेड फॉर्मूला है अपने पास, है ना. अच्छा, इसके लिए मैं इसको व्यू करूंगा एज u माइनस v प्लस w, u माइनस v प्लस w. सही है? और हर एक का अलग अलग से मैं डेरिवेटिव लेता जाऊंगा, है ना.
लेकिन इसका डेरिवेटिव लिखते समय कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालूंगा। कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, तो कुल मिलाकर क्या आएगा मुझे बताइए। सो दिस विल बिकम dy by dx is equal to 4x square minus 7x plus 5 into sec x tan x plus sec x inside the bracket। अब इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, लेकिन इसका डेरिवेटिव लिखते समय मैं कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता हूँ। सो आई राइट इट एज 4 into d by dx of x square, कैन आई से सो। माइनस इसका लिखते समय मैं 7 बाहर निकाल दूंगा, 7 into d by dx of x, and this itself is a constant, plus d by dx of 5। is this clear to you all? समझ में आ गई बात? अब यहां पे मैं d by dx of x raised to n, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ना, तो चलिए बताइए क्या होगा, ये बताइए। सो दिस विल बिकम, बोलिए, sec x tan x into this bracket 4x square minus 7x plus 5 plus sec x inside the bracket 4 into x raised to n x raised to n minus 1 to x raised to 2 minus 1, that is 1। is this okay? Minus 7 times d by dx of x, formula 1c, correct है, and this is formula number 13, derivative of a constant। is 5 a constant? तो इसका डेरिवेटिव आएगा प्लस 0। is this okay? तो कुल मिलाकर क्या बनेगा, sec x into tan x, this is 4x square minus 7x plus 5 plus sec x into 8x minus 7। that's the answer। is this clear to you all? any doubts? अगला क्वेश्चन, थर्ड, this is y, x sin x plus cos x into x cos x minus sin x। I will treat this first function as u and this second one as v, and I'll use u into v। so what is dy by dx is u dv by dx plus v du by dx, correct? apply करिए, क्या आएगा, therefore dy by dx is equal to first function as it is, क्या है, x sin x plus cos x into d by dx of v x cos x minus sin x। any doubts about that? plus बताइए, प्लस यहाँ पर आएगा v, that is x cos x minus sin x into d by dx of u x sin x plus cos x। गौर से देखिए, अब मैं जब इसको सॉल्व करना है मुझे यहाँ पे, तो इसमें यू नो व्हाट, ये तो एज इट इज रहेगा, और इसका डेरिवेटिव लेते समय मुझे इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। बट अगेन व्हाइल राइटिंग दिस डेरिवेटिव, दिस इज u into v। सिमिलरली जब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे ऐसे और वैसे, तो अगेन व्हाइल राइटिंग दिस डेरिवेटिव, दिस इज u into v ना, समझे क्या? तो u into v के अंदर u into v, कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल है। लेट्स वर्क इट आउट, चलिए देखते हैं क्या आएगा, बताइए ये। सो दिस विल गिव मी देयरफॉर dy by dx is equal to, this bracket is as it is, x sin x plus cos x into, इसका डेरिवेटिव लिखना है
सो शैल आई राइट दिस या फिर u इंटू वी अप्लाई कर लेने, पहले लिख लेते हैं. दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा x इंटू कॉस एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. कैन यू टेल मी डायरेक्टली? या लिख लूँ मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. सही है. प्लस x cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई, अभी इसका डेरिवेटिव लेते समय आई हैव टू गो इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ x साइन x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ cos x. इज दिस क्लियर टू ऑल? इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अब क्या आएगा बताइए, बताइए. या अब क्या करना है, अब इसका डेरिवेटिव लेना है. सो व्हाइल राइटिंग दिस डेरिवेटिव आई विल से दिस इज u into v. करेक्ट. ये वाला डेरिवेटिव डायरेक्ट आएगा और ये डेरिवेटिव लिखते समय भी मुझे लिखना पड़ेगा u into v. इस तरह ओके. चलिए शुरू करते हैं. क्या बनेगा बताइए. सो बिकम x sin x प्लस cos x. सही है. इनटू, देखो u into v को हम इस तरह से याद रख सकते हैं. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट. ठीक है. चलिए बताइए, यहां पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं. क्या आएगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड d by dx of cos x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज cos x into डेरिवेटिव ऑफ x d by dx of x. सही है. माइनस d by dx of sin x, फॉर्मूला नंबर 4. फॉर्मूला नंबर 4 यहाँ पर आएगा. फॉर्मूला नंबर 4 समझिए क्या. दिस इज माइनस cos x. एनी डाउट्स अबाउट दैट? ठीक है. प्लस ये आएगा x cos x माइनस sin x into, now this is u into v. First function as it is x into d by dx of sin x plus second function as it is sin x into d by dx of. ठीक है. अब मुझे आप बताइए व्हाट इज फॉर्मूला नंबर 5. d by dx of cos x क्या होगा. So shall I write here minus sin x? Any doubts about this? This is very clear to all. चलिए अभी मुझे इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है. Therefore, what will be the next step? dy by dx is equal to, बताइए. dy by dx is equal to, it's the step of simplification now. x sin x plus cos x into x will be as it is d by dx of cos x. फॉर्मूला नंबर 5. फॉर्मूला नंबर 5 माइनस sin x. तो मुझे इसको माइनस यहाँ पर लिखूं या इसको अटैच करके यहाँ माइनस लिखूं, है ना. ओके. प्लस cos x will be as it is डेरिवेटिव ऑफ x 1c 1. समझ में आ रहा है. माइनस cos x प्लस x cos x माइनस sin x into x d by dx of sin x, फॉर्मूला नंबर 3 cos x plus sin x into d by dx of x, फॉर्मूला नंबर 1 minus sin x. एनी डाउट्स? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है कुछ कैंसिल. क्या कैंसिल हो रहा है देखिए, ये प्लस cos x और ये माइनस cos x they'll cancel each other. ये प्लस sin x और ये माइनस sin x they'll cancel each other. सही है कि नहीं है? ठीक है. अब जो कुछ बचा है यहाँ पे उसको हम बोलेंगे जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स. तो ये क्योंकि अंदर ये तो चला गया, सो आई विल ओपन द ब्रैकेट्स विद दिस मल्टीप्लिकेशन. आई विल ओपन द ब्रैकेट विद दिस मल्टीप्लिकेशन.
इज दैट क्लियर? सो क्या बनेगा बताइए मुझे, बताइए मुझे क्या बचेगा वहाँ पे. टेल मी, विल गेट देयर. सो दिस विल गिव मी dy by dx is equal to बताइए x sin x that is minus x square sin square x minus x sin x into cos x. X cos x, this is plus x square into cos square x. सही है. माइनस x sin x into cos x. तो ये कुल मिलाकर क्या हो गया यहाँ पे बताइए. Therefore this will become dy by dx is equal to, can I take x square common? Yes. तो ब्रैकेट में क्या आएगा, cos square x minus sin square x. Correct? And this is minus x sin cos x minus x sin x cos x. This is minus 2x sin x cos x. Is this clear? इसे मैं डबल एंगल फॉर्मूले से भी लिख सकता हूँ. तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. अब डबल एंगल फॉर्मूला cos 2x. अब ये 2 अगर इसके साथ अटैच करूंगा तो ये भी डबल एंगल फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x. So this is minus x times sin 2x. Is this clear to all? Any doubts about that? Okay, let us proceed further now. आगे बढ़ते हैं. इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? I think I'll switch over to maths now. ठीक है? Okay, I'll stop here for physics. I'll switch over to maths now.